I would like to tell you कि in today's class we are going to discuss Wordsworth's important poems. But remember that उन poem में से तीन चीजें लेनी है: lyrical ballad, Tintin Abbey, Ode on the Intimations of Immortality. हम बहुत ज्यादा व्हाइट बोर्ड का यूज नहीं करेंगे या बहुत ज्यादा लिखेंगे नहीं, लेकिन इंफॉर्मेटिव होगा और एक्सप्लेनेटरी होगा, क्रिटिकल एनालिसिस होगा इन तीन पॉइंट ऑफ व्यू से। और कौन कौन से क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं हम उसको लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू हैव टू गो, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की जो भी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं हम उसे कवर करेंगे। एंड व्हेन वी से कि वी हैव टू गो विद द इंपॉर्टेंट पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, सबसे पहले कोई भी वर्क जो शुरू होगा उनका वो लिरिकल बैलड से चलना है। When you talk about lyrical ballad, remember that there are certain points. I think कि कुछ brightness पहले से ठीक हुआ होगा। So when we talk about lyrical ballad, already we know कि when you say lyrical ballad, it's important for what? Lyrical ballad is important because I'm not saying it's the magnum opus of S.T. Coleridge or William Wordsworth, but remember that कि undoubtedly lyrical ballad, it's a hallmark. It's a hallmark. If you talk about romantic age, in the history of romantic age, in the pages of romantic age, it's a hallmark. इसने एक ऐसा निशान छोड़ा जिसको जिसको लेकर के हम कह सकते हैं इसी के आने से रोमांटिसिज्म शुरू होता है। तो लिरिकल बैलाड अल्टीमेटली इट केम इन 1798 या 1798 में आता है। इसके साथ क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि इट्स अ जॉइंटली वर्क ऑफ S.T. Coleridge and William Wordsworth. S.T. Coleridge and William Wordsworth. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यू विल कम टू नो कि जब ये पहली बार पब्लिश होता है तो यू फाइंड हाउ मेनी पोएम्स यू फाइंड इन द फर्स्ट वॉल्यूम। इन द फर्स्ट वॉल्यूम केम इन 1798। you find how many poems? You find 23 poems. In the first volume you find 23 poems. How many poems you find? 23 poems. ये जो 23 poems रहा है, इस 23 poems में you find that 19 were composed by William Wordsworth and 4 by S.T. Coleridge. ये हम सबको पता है। Even I know that you have learned it. There is no need to discuss it again and again. But we can't skip even a single work of William Wordsworth because we all have to go again. You can say कि I'm revising and you are recalling your memory. Already it is stored in you in memory. There is no need to discuss these points. But remember that there is a process to go with the poem. And what is that? First we have to talk about lyrical ballad. The first volume of lyrical ballad, it came in 1798. It was what? It's a jointly work of S.T. Coleridge and William Wordsworth. या उनका jointly work है। किसका jointly work है? S.T. Coleridge and William Wordsworth का। How many poems came in the first volume? You find that how many poems? You find 23 poems. And now you get what कि ये किसका जो है jointly work था? It was the jointly work of S.T. Coleridge and William Wordsworth. The third point, when you talk about कि there were the 23 poems, 19 were composed by William Wordsworth and 4 by Coleridge. और इसमें जो है जो पहली पोयम थी, the first poem was Coleridge's Rime of Ancient Mariner. The first poem was
Coleridge Rime of Ancient Mariner. The Rime of Ancient Mariner. And remember that the concluding poem was, which I have to discuss after taking these points, which I have to discuss, that is what? That is Tintern Abbey. And you will come to know, and the concluding poem was टिंटन अबे. जो कंक्लूडिंग पोयम था वह कौन सी पोयम रही है? टिंटन अबे. TINTERN, टिंटन अबे. So here you find, and what do you find? You find कि उस 23 पोयम में से आप ये पाते हैं कि एक पोयम कॉलेज का जो बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. दिस राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, यू फाइंड कि वो चीज रही है. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू फाइंड व्हाट कि राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. दिस इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू गो. जो कंक्लूडिंग रहा है वो टिंटन अबे किसका रहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ का रहा है, जिसे आज हमें कवर करना है. Now, after taking these points, कि why did I say कि the poem was hallmark? The poem was hallmark. Why did I say? You find that कि whatever the characteristics of romantic age you find, whether that is pantheism, mysticism, natural concept of poetry, supernatural concept of poetry, democratic spirit, nature as guide, guardian, caretaker, nurse, nature the fountain head of peace, calm, tranquility, balm, even whatever you see, whatever you find, जो भी चीजें आप देखते हैं, जो भी चीजें आप पाते हैं, आप इस चीज को देखेंगे कि वो सारी की सारी चीजें सबसे पहले कहाँ पे यूज की गई हैं? लिरिकल बैलड में. बाद में उसको क्या किया जाता है? द पीपल अल्टीमेटली बिलीव, या अदर पोएट्स कम, दे फॉलो young generation, P.B. Shelley, S.T. Coleridge, and you find Lord Byron. That is another thing. But remember that कि ज्यादातर जो चीजें रही हैं, all the things, even you can say the basic characteristics of romantic age, you find where? You find in this beautiful collection, the first volume of lyrical ballad. So why this was important? चूंकि एक चीज और ध्यान में रखना है कि यह जो पोयम रही है, इस पोयम ने एक चीज को जन्म दिया, नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री. नेचुरल concept of poetry was given by W. William Wordsworth. Now the fifth point, supernatural concept of poetry. Supernatural concept of poetry was given by S.T. Coleridge, a man of opium eater, who made the distinction, DISTINCTION, who made the distinction between fancy and imagination. So you find this point, and what is that? You find key in point number 5, there is what? There is the natural concept. And this natural concept was given by whom? Natural concept of poetry was given by W. William Wordsworth. On the other hand, you find what? On the other hand, you find supernatural concept of poetry. This supernatural concept of poetry was given by S.T. Coleridge. It was given by whom? It was given by S.T. Coleridge.
एसटी कॉलेज अ मैन ऑफ ओपियम ईटर, ये भी क्वेश्चन बनता है। हु मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन, जिन्होंने फैंसी और इमेजिनेशन के बीच में अंतर पैदा किया। किसने अंतर पैदा किया? इन हिज बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया, इन हिज बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया, LITERARIA, ये किताब कब आती है? 1817 ईस्वी में। चैप्टर नंबर 13 और 14 पे उन्होंने बात किया है, विशेष करके 14 में। सो यू फाइंड दैट कि दीज आर 5 पॉइंट्स, बट इन 5 पॉइंट्स यू फाइंड सो मेनी पॉइंट्स। There are only 5 points, but when you talk about these points, you find so many points, and you come to know कि we are talking about whom? We are talking about lyrical ballad. Again, I would like to tell you कि today we are going to take lyrical ballad, we are going to take Tintin Abbey, we are going to take Ode on the Intimations of Immortality, and we know it very well. These are the important poems of William Wordsworth. When you talk about lyrical ballad, it came in 1798. It was what? It's a jointly work of S.T. Coleridge and William Wordsworth. Second point, it has 23 poems, 19 were composed by W.W. and 4 by Coleridge. 19 were composed by W.W. William Wordsworth and 4 by S.T. Coleridge. The first poem was Coleridge's The Rime of Ancient Mariner. मतलब जो 23 पोयम आई थी, उस 23 पोयम में से पहली जो पोयम थी कॉलेज का द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, एंड कंक्लूडिंग पोयम वाज टिंटन अबे, जो किसका था? वर्ड्सवर्थ का था, एंड द कंक्लूडिंग पोयम वाज टिंटन अबे। Natural concept of poetry was given by W.W. Supernatural concept of poetry was given by S.T. Coleridge, a man of opium eater who made the distinction between fancy and imagination in his book Biographia Literaria 1817 में आइए। Now, what other points you have to remember when you talk about biographia, when you talk about lyrical ballad? Already I told you there is no need to note down. If you want to note down, you can note down, but remember that whatever the characteristics I told you related to romantic age are the basic characteristics of romantic poetry. All those points you find, where all those points you find for the first time in lyrical ballad. Natural concept of poetry, supernatural concept of poetry, democratic spirit, pantheism, mysticism, nature as guide, guardian, caretaker, nurse, concept of spirituality, but such a type of spirituality for which you don't need either church, either temple, either mosque. No, not at all. For Wordsworth, natural objects, yeah, you can say ki just as beautiful place, Tintin Abbey. Tintin Abbey, that was a beautiful place covered with shadowy trees. In the eye of William Wordsworth, that was just like the church. He sat there, he meditated and called, invoked God, and God means nature, and God, peace, calm, and tranquility. There is no word to tell the beauty, to tell that feeling. What did he feel and what ultimately he got in the lap of nature? No word ultimately which can tell the beauty, which can tell, you can say कि उस feelings को share किया जा सके. So what I want to say, when you go with these points, you have to keep in your mind कि क्यों lyrical ballad important है. बहुत सारा जो भी रोमांटिक एज का रहा है सब, यू फाइंड यूज ऑफ ब्लैंक वर्स, यू फाइंड ओपन स्काई, यू फाइंड ओपन फील्ड, you find natural objects, even you find key not only natural objects in big size, even petty objects, daffodil, mountains, rivers, rising of the sun, climbing of the moon, falling of the water. All these things you find. Even when you go with the poem Tintin Abbey, you find what ki 5 years have passed, 5 summers with the length, and again I hear the water rolling from the mountain. All these things you come to know. So what you find ki falling of water, beautiful natural place covered with shadowy trees, there is a wide river passing through the forest, and some fairies you find, and there is his sister with him. His sister is also, his sister Dorothy was. So no basti of human being, no man's island you can say, but he finds, he gives the picture कि some आप कह सकते हैं कि smoke जो है वो जो है that is raising,
that is going above. So you can just feel ki some hermits are in the mid of the forest, they are also meditating. So such a thing you can find. He doesn't talk about pub, restaurant, hotel, big bazaar, modern culture, modern civilization. No, not at all. He is only talking about open field, open area, countryside beauty, village area, democratic spirit. यू कैन से कि शेफर्ड और शेफर्डेस का जो लाइफ, उन सब चीजों को लेके वर्ड्सवर्थ बात करते हैं. सो इतना मैंने इस पे ये बताया. तो ये तो क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से वो चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको शेयर किया. बार बार वो बात आती रहेगी. सो हमें ये समझना. इसी का एक दूसरा हिस्सा है जहां से क्वेश्चन आता है. वह दूसरा हिस्सा क्या है? प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड. वो भी मैं यहाँ पे अलग से आपको बात करना चाहूंगा. दैट इज प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड. नाउ यू फाइंड व्हाट, एक और इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो इससे जुड़ा हुआ है. दैट इज प्रीफेस टू लिरिकल ballad, BALLAD, and it came in 1800. So what in preface to lyrical ballad? When you talk about preface to lyrical ballad, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि कब आया preface to lyrical ballad? 1800 में. ये सेकेंड वॉल्यूम में प्रीफेस जोड़ा गया. अगर प्रीफेस जोड़ा गया तो ये पूछा जाएगा कि हु एडेड इट. तो सबसे पहला चीज कि प्रीफेस वाज एडेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. प्रीफेस वाज एडेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट डू यू फाइंड इन प्रीफेस? प्रीफेस में आपको क्या मिलता है? क्यों प्रीफेस इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला चीज आप ये पाते हैं कि जो प्रीफेस है, इन प्रीफेस देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक डिक्शन. जो प्रीफेस है वहां पे कॉन्सेप्ट किसका है? देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक डिक्शन. प्रीफेस में you find concept of poetic diction. When you say कि there is the concept of poetic diction, then what do you mean by diction? दूसरा चीज ये भी क्वेश्चन की poetic diction का concept किसने दिया? वर्ड्सवर्थ ने दिया. प्रीफेस किसने जोड़ा? वर्ड्सवर्थ ने जोड़ा. तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड का मतलब सब कुछ क्रेडिट वर्ड्सवर्थ को. नाउ व्हाट इज डिक्शन? तीसरा पॉइंट, diction means selection of words. Diction means selection of words. और selection of words का मतलब कि which type of word you are going to opt to compose the poem. So Wordsworth said that. What did he say? He said that there should be the selection of rustic language and rustic people. In the poem, we have to talk, you have to tell about rustic people and rustic language. So एक और important point आ रहा है. वह कौन सा point है? That is the fourth point कि when you talk about selection of words, तो this selection of words mean rustic people and rustic language. This rustic people and rustic language means what? It means the people who are simple, the people who are living in village area. They are not much sophisticated, they are not much intellectual, they don't know the ABCD of the philosophy which we teach in our institution. Though they know what is life, though they also know the philosophy of life, but their knowing is in different form, in different way. Maybe they are not familiar with Plato, maybe they are not familiar with Aristotle, but they know what life is. In their life there is simplicity, in their life there is what? In their life you can say कि they are such a type of people who
who believe, they are generous, kind-hearted, simple people. They don't have any you can say they're not the greedy people. They don't have the complexity of life. Very simple. They come with open heart and mind. They welcome, they greet each and everyone. So Wordsworth ultimately supported whom? Wordsworth said to go with whom? Wordsworth ultimately said to go with rustic people. This rustic people and rustic language you find, and when you talk about rustic people and rustic language, this particular rustic means simple and poor people living in village area. So language used by them, we have to go with that language. हमें उस language का use करना है. It was said by whom? It was said by William Wordsworth. अब और क्या क्या चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन it was criticized. It was criticized by S.T. College. S.T. College was the first critic who criticized William Wordsworth for talking about rustic people and rustic language. He didn't criticize ki why do you talk about rustic people, but when he said ki diction means selection of words and we have to choose language just used by rustic people, then he said which type of language. ऐसा नहीं कि rustic people sophisticated language नहीं use करते होंगे. So एक point यहाँ पे आप ये जरूर लिख लीजिएगा कि this concept of Wordsworth was criticized by S.T. College for the first time. This concept of oh my God. This concept of Wordsworth was criticized, criticized, criticized by S.T. Coleridge for the first time. For the first time. So find what do you find? You find here what कि ये जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट? पोएटिक डिक्शन का कॉन्सेप्ट. इसको जो है वर्ड्सवर्थ का किसने क्रिटिसाइज किया था? एस.टी. कॉलेज ने किया है, और पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि who criticized the concept of poetic diction given by William Wordsworth for the first time? It was criticized by S.T. Coleridge. Now the next point, what other things have been said or done? Yeah, while preface to lyrical ballad is important, कुछ डिफिनीशन आता है पोइट्री का, और वह जो डिफिनीशन है उस डिफिनीशन में एक पॉइंट ये आता है कि पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर. मैन एंड नेचर, मैन और नेचर की बात आ रही. उन्होंने मैन और नेचर के रिलेशनशिप को लेकर के उन्होंने बात की. उन्होंने नहीं कहा कि पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन्स लाइफ या पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. उन्होंने ये नहीं कहा कि पोइट्री इज म्यूजिक या पोइट्री इज एक तरह से आप कह सकते हैं कि इट्स अ वॉइस ऑफ गॉड, जैसे रॉबर्ट ब्रिज या और लोग कहते हैं. नो, नॉट एट ऑल. क्योंकि उनकी पूरी पोइट्री में एक ही बात आप पाते हैं, वह क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर. जैसा कि यू सी वेयर यू सी इन द वर्क्स ऑफ whom? यू सी इन द वर्क्स ऑफ D.H. लॉरेंस, मैन वुमन रिलेशनशिप, वैसे मैन नेचर रिलेशनशिप इन द पोइट्री. इसीलिए उन्होंने कहा पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर. जो पोइट्री है वह अक्स है. किसका अक्स है? मैन और नेचर का अक्स है. यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा. दूसरा चीज उन्होंने कहा कि एवरी पोएट इज अ टीचर. एवरी पोएट इज अ टीचर. हर पोएट अपने में क्या है? टीचर है. Every poet is a teacher. Here teacher means that the poet ultimately, undoubtedly he writes, composes something, but when he composes, the ultimate aim is to get pleasure, to get delight. But he also says that every poet is a teacher. Means there is delight, and after delight, yeah, delighting, what we find? We find some
some pleasure, we find some moral lesson, just as he says ki nature is like a guide, guardian, caretaker, nurse. We come to know it very well ki what does he want to say. He is teaching us. So there in the poetry of William Wordsworth there is teaching, and this is why he says every poet, हर पोएट क्या है, इज अ टीचर. हर पोएट अपने में एक टीचर होता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. या Sir, all these definitions are taken from preface to Lyrical Ballads. Preface to Lyrical Poet. Okay, sir. And you those find quotations taken from. And this is whatever I am telling. Yeah, sir. Okay, sir. Whatever I am telling you, ये सब का सब Lyrical Ballads है. Preface to Lyrical Ballad. Now. Yes. The next thing which you talk, that is what he said, that there is no distinction between prose and poetry except meter. प्रोज और पोइट्री के बीच में कोई डिफरेंस नहीं मीटर को छोड़ करके. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वर्ड्सवर्थ की नजर में प्रोज और पोइट्री के बीच का क्या डिफरेंस है. तो ही सेड दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री एक्सेप्ट मीटर. मीटर के अलावा और कोई दूसरा डिफरेंस नहीं है. सो यू फाइंड व्हाट यू फाइंड हियर, दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री एक्सेप्ट मीटर. मीटर के अलावा यू डोंट फाइंड एनी अदर different. This is another important point which you have to go. And last point I would like to tell you, जो आपने उनका पढ़ा है वो क्या है. पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस, SPONTANEOUS. पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस overflow of powerful feelings. OVER, overflow of powerful feelings. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डॉट उसके आगे भी है. तो लास्ट में 9 पॉइंट आपको ये मिलता है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस overflow of powerful feelings. You find this point. So what I want to say, what I want to tell you, when you go with these things, you have to remember, you have to go with these points and try to understand कि ये चीज कितना important है या क्यों important है. I think now you got these 9 points. If you note it, let me know. हो गया सर. सबका हो गया है? यस सर. Okay. Now, after taking, I said I will talk about टिंटन अबे. अब हम लोग जो बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है, टिंटन अबे है. और मैं उसको लेके फिर बता दूं कि मैं उसको जितना बताऊंगा वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आपको समय मिलेगा तो उस पोयम की ओरिजिनल लाइनें आप पढ़ लीजिएगा. उस पोयम की ओरिजिनल लाइनें. अब आप कहेंगे कि कैसे पढ़ लेंगे. इन मीन्स आप यू कैन जस्ट से कि गूगल पर या कहीं पर उससे रिलेटेड पूरा पोयम पीडीएफ पड़ा हुआ है. आपको केवल डालना है कि टिंटन अबे ओरिजिनल पोयम पीडीएफ फॉर्म, पूरी पोयम आ जाएगी. उससे रिलेटेड जो है पैराफ्रेजिंग, एक्सप्लेनेशन, दीज थिंग्स यू फाइंड वेयर, दीज थिंग्स यू कैन जस्ट सी कि वो वहां पे मौजूद है. तो आपका आज का जो काम होगा वो केवल इसका रिवीजन करना और टिंटन अबे की लाइन को आपको उसको करना. इवन मैं कुछ लाइंस को जाऊंगा, मैं कुछ बताऊंगा, लेकिन अगर आप और कर लेते हैं तो आपको उनके बारे में और जानकारी हो जाएगी. इफ यू आर इंटरेस्टेड, अदरवाइज नो कंपल्शन. मैं अपनी तरफ से तो पूरा कोशिश करूंगा बताने के लिए, लेकिन ये पॉसिबल है कि पूरी पोयम पढ़ाई जाए.
क्योंकि बहुत सारी इस तरह से पोएम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे राइटर्स हैं, तो किसी भी राइटर्स की पूरी पोएम को क्लास में एक एक लाइन नहीं पढ़ाया जा सकता, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग ग्रेजुएशन. इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि यू हैव रेड इट ईदर इन बीए और एमए, ये चीज होता है. लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर करेंगे, बट उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैं पढ़ा दूं वो तो है ही है. इफ यू गेट टाइम तो कोशिश करिएगा, एक बार और पढ़िएगा. So we are going to take what? We are going to take Tintin Abbey. Now, when you talk about Tintin Abbey, जब आप Tintin Abbey को लेके बात करते हैं, तो what points you have to remember? सबसे पहला पॉइंट कि ये जो पोयम है, it published in 1798 in the first volume of lyrical ballad. दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इट इज रिटन in blank verse. तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, it is an example of dramatic lyric. ये ऊपर के दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों टीजीटी या पीजीटी में आ चुका है. किसमें लिखी गई है? ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है. किसका एग्जांपल है? ड्रामेटिक लिरिक का. यही मैं डिफाइन कर दूं कि ड्रामेटिक लिरिक क्या है. ड्रामेटिक लिरिक अ टाइप ऑफ पोयम इन विच poet speaks throughout the poem and other characters work as listener. एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स यह होती है, दूसरा चीज कि पोएट के दिमाग में जो चल रहा है, उसके दिल में जो चल रहा है, वह उसको बाहर निकालता, अपने मन की व्यथा को अगर कहा जाए, चाहे ड्रामेटिक फॉर्म होगा, चाहे ड्रामेटिक मोनोलॉग होगा, चाहे ड्रामेटिक लिरिक होगा, उन दोनों में वह उसको बाहर निकालता है. लेकिन फर्क क्या है ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामेटिक लिरिक में, कि ड्रामेटिक लिरिक में जो स्पीकर होगा वह पोएट खुद होगा. ड्रामेटिक लिरिक अ टाइप ऑफ पोयम इन विच, जिसमें कि द पोएट speaks throughout the poem. ड्रामेटिक लिरिक उसी पोयम को कहा जाएगा जिसमें पोएट जो है क्या करता है, स्पीकिंग का काम करता है. अब आप कहेंगे कैसे? टिंटिन एबे में फॉर एग्जांपल, यहां मैं लिख दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल इन दिस पोयम वर्ड्सवर्थ स्पीक्स, वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ speaks, वर्ड्सवर्थ ही पूरी पोयम में बोलते, वर्ड्सवर्थ himself speaks and Dorothy Wordsworth only listen. It means that she is listen and Dorothy only listens. LISTNES. डोरोदी केवल सुनने का काम करती है. ड्रामेटिक लिरिक अ टाइप ऑफ पोयम in which poet speaks throughout the poem and other characters, ये जो other characters हैं वे क्या करेंगे? other characters they work as listener. वे किसके रूप में काम करेंगे? वे listener के रूप में काम करेंगे. they work as listener. for example, उदाहरण के लिए, in this poem वर्ड्सवर्थ himself speaks, वर्ड्सवर्थ स्पीकिंग का काम करते हैं, and Dorothy only listen, वर्ड्सवर्थ himself speaks and Dorothy only listen. ये चीज आपको ध्यान में रखना. यह कैरेक्टरिस्टिक है ड्रामेटिक लिरिक की. अगर आपसे कोई पूछता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में
पोएट जो है स्पीकिंग का काम नहीं करेगा, कोई थर्ड पर्सन स्पीकिंग का काम करेगा। अब उसके बाद पांचवा पॉइंट है व्हाट इज टिंटन अबे, TINTERN, टिंटन अबे is a natural shadowy place covered with trees. Tinton Abbey is a natural shadowy place covered with trees, mountains, a river, covered with trees and mountains. The river Y, W-Y-E, the river Y passes through it. ये चीज पूछी जा चुकी है। टिंटन अबे इज अ नेचुरल शैडोई प्लेस, ये अपनी जगह, ये तो मैंने डिफाइन किया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है वहां से कौन सी नदी गुजरी है, वाई, रिवर वाई पासेस थ्रू इट, वहां से जो नदी गुजरी है उसका क्या नाम है, रिवर वाई है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि यह जो प्लेस है यह वर्ड्सवर्थ की नजर में उतना ही इंपॉर्टेंट इस प्लेस का है जितना इंपॉर्टेंट किसी के लिए धार्मिक विश्वास के रूप में मंदिर, मस्जिद या चर्च हो सकता है। उतना ही वर्ड्सवर्थ के लिए यह प्लेस, क्योंकि वो वहां पे उनको ऐसा नहीं वो उस प्लेस को केवल इसलिए देखते हैं वहां ट्रीज है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, बल्कि वो वहां पे नेचर की वर्शिपिंग करते हैं। इस पोयम में उन्होंने कहा कि आई एम द ट्रू वर्शिपर ऑफ नेचर। अगर आप देखेंगे और जो है जो क्रिटिक्स हैं, एसी स्विनबर्न ने उनको हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा है, मॉडली ने भी कुछ कहा है उनके लिए। सो यू व्हेन यू गो विद दीज पोएम्स यू अल्टीमेटली कम टू नो या यू फाइंड दैट व्हाट डू यू फाइंड दैट यू फाइंड कि टिंटन अबे इज अ नेचुरल शैडोई प्लेस कवर्ड विद ट्रीज एंड माउंटेन्स, द रिवर वाई पासेस थ्रू इट। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वह कौन सा है, दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट। वर्ड्सवर्थ visited this place in 1793 for the first time and revisited with Dorothy। अब ये बताने की जरूरत नहीं, डोरोथी उनकी सिस्टर है बार बार, विथ डोरोथी इन 1798। सो रिमेंबर दैट कि वर्ड्सवर्थ ने उस जगह को जो सबसे पहली बार विजिट किया है वह जगह 1793 में उन्होंने विजिट किया। दोबारा कब विजिट करते हैं, 1798 में, आफ्टर द गैप ऑफ 5 इयर्स, 5 साल के गैप के बाद। इसीलिए उन्होंने पोयम की लाइन में लिखा, क्या लिखा कि 5 years have passed, 5 summers with the length, कि 5 साल बीत चुका है, 5 साल के बीतने के साथ साथ 5 years have passed, जब 5 साल बीता, 5 गर्मी भी बीती, 5 जाड़े भी बीते, 5 बरसात भी बीता। सो यू फाइंड कि 5 years have passed, 5 summers with the length and again I hear, और मैं दोबारा सुनता हूँ, the water rolling from the mountain, all these things you find। so what I want to say कि this particular चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कल आपको बताया था कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, वह कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्पॉट ऑफ टाइम। he gave the concept and what is that concept, spot of time, उसका कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। मैं सबसे जानना चाहता हूँ सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, सारी चीजें विजिबल हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर, सब कुछ क्लियर है। Yes, sir. ओके। तो जब उन्होंने इस जगह को गए या इस जगह को देखे तो उसमें उनको क्या क्या चीजें आता है, उनके माइंड में क्या आता है, व्हाट डज ही थिंक आफ्टर सीइंग दैट प्लेस, उनके माइंड में क्या आया, क्या चीज उन्होंने किया, उस पार्टिकुलर का जिक्र हम करने जा रहे हैं।
एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब उन्होंने इस पोयम को टिंटन अबे को जब 1798 में विजिट किया तो इस पोयम को उन्होंने लिखा, और जो है जब उन्होंने इस पोयम को लिखा या उनके दिमाग में जो भी चीजें आई है, तो एक पोयम का जो टाइटल है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं नोट करा दूं कि पूरा जो उसका टाइटल है, ये चीज बहुत आपको लर्न करना पड़ेगा। टाइटल टिंटन अबे पोयम तो है ही है, लेकिन उसका पूरा जो टाइटल है TITLE, कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट टाइटल, ये आप लर्न कर लीजिएगा, इंटरव्यू में पूछा जाता है। लाइन्स composed a few miles above from Tinton Abbey. Tinton Abbey on the revisiting the banks of the Wye River with Dorothy and Coleridge. सर थोड़ा बड़ा लिखिए सर। ओके ओके, सो यू फाइंड कि उन्होंने कहा लाइन्स कंपोज्ड, यह जो लाइन है टिंटन अबे की, उन्होंने इसका जो टाइटल कि हमने कुछ लाइनें लिखी, कहां पे लिखी, अ फ्यू माइल्स एबव फ्रॉम टिंटन अबे से कुछ ही दूर जाने पर, टिंटन अबे मतलब उस प्लेस को जैसे ही वो देखते हैं सेकेंड टाइम में, अभी वो गए थोड़ी दूर ही गए हुए उनको हुआ होगा, लेकिन वो जगह उनको इतनी प्रभावित करती है, ही फाइंड सच अ थिंग दैट प्लेस, कि वो उससे तब मुतासिर होते हैं, यू कांट बिलीव। और जैसे ही वो जाते हैं उन्होंने उसको लिखा और उन्होंने बताया भी कि इसको मैंने रिविजिट किया था, और वहां पे वाय नाम की नदी है, और साथ ही साथ किसके साथ, डोरोथी और कॉलेज के साथ। तो ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पोयम को जो है पूरा का पूरा जो बांटा जाएगा, 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, और ये जो 3 हिस्सा है, कॉलरिज उसके बाद ऑन 13, सॉरी एक उन्होंने डेट भी दिया है, ये अधूरा रह गया, ऑन 13 जुलाई 17, 13 ये डेट जरूर, 13 जुलाई 1798, 13 जुलाई 1798 को। इस पोयम को आपको ये ध्यान में रखना, कितने हिस्सों में बांटा जाएगा, 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। द पोयम जो ये है ये 3 हिस्सों में चलेगी। जो सबसे पहला पार्ट है, वो पार्ट जो है कहां से कहां तक कवर करता है, लाइन नंबर 1 से फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोयम कवर्स लाइन नंबर 1 से 22, लाइन नंबर 1 से 22। ये जो पहला पार्ट है, इसमें यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर, EXTERNAL, एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर। इन द फर्स्ट पार्ट यू फाइंड एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर। सेकेंड पार्ट जो कवर करता है 23 से 113, 23 से 113, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट 23 से 113 लाइन, मतलब 113 लाइंस, और इसमें उन्होंने जो शेयर किया है पास्ट एक्सपीरियंस, जब 5 साल पहले वो आए थे तो उन्होंने जो महसूस किया था, जो देखा है, नेचर का जो प्रभाव उनकी जिंदगी पर था, उन सारे एक्सपीरियंस को उन्होंने यहाँ पे शेयर किया। तो वह कौन सा एक्सपीरियंस होगा, पास्ट एक्सपीरियंस।
उसके बाद आपका क्या है, थर्ड पार्ट, जो सबसे ज्यादा फिलोसफिकल है। थर्ड पार्ट 114 से 160, इसमें उन्होंने जो शेयर किया है, ही एड्रेस्ड डोरोदी एंड डिपिक्टेड mysticism and pantheism and depicted internal and philosophical beauty of nature. ब्यूटी ऑफ नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। थर्ड पार्ट, लाइन नंबर 114 से 116। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस पोयम में उन्होंने जो बताया हुआ है, लाइन नंबर 120, लाइन नंबर 122 से लेकर वहां तक उन्होंने एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर, ही टेल्स अबाउट व्हाट, ही टेल्स अबाउट एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर। उन्होंने यहाँ पे एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर कहा है, ऑलरेडी यू आर जस्ट सीइंग। सेकेंड पार्ट में उन्होंने किसके बारे में बात किया है, पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर के उन्होंने बात किया है। और जो थर्ड हिस्सा है उसमें उन्होंने डोरोथी को एड्रेस किया है, और जो डिपिक्ट करते हैं इंटरनल एंड फिलोसफिकल ब्यूटी ऑफ नेचर, जिसमें पैंथिज्म, मिस्टिसिज्म और नेचर लाइक अ गाइड, गार्जियन, केयर टेकर, जिसमें कहते हैं आई एम द ट्रू वर्शिपर ऑफ नेचर। वह यह बात करते हैं कि इफ एनीवन सबमिट हिमसेल्फ या हरसेल्फ इन द लैप ऑफ नेचर, नेचर नेवर डिड बिट्रे। और अपनी वो बहन को कहते हैं कि जो चांद की चांदनी है, उसकी जो चमक है जो तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है, इसको पढ़ने दो। इसको क्यों पढ़ने दो? क्योंकि जो आज तुम हो, पहले मैं वही था, और जो तुम्हारी आंखों में चमक है, इससे मैं अपने बचपन को देखता हूँ। When I came for the first time in the lap of nature, at that time what I was, I see my childhood in your lovely eyes, that is your wild and glittering eyes, that's amazing beautiful eyes, and I feel दैट कि आपकी आंखों की जो चमक है नेचर को लेकर के, इसको मैं महसूस करता हूं कि मैं ऐसे था। अब मैं वो वर्ड्सवर्थ नहीं हूं, अब मैं मेच्योर वर्ड्सवर्थ हूं। मैं नेचर को अब दूसरे रूप में देख रहा हूं, उसका इंटरनल ब्यूटी, उसका मिस्टिसिज्म, उसका पैंथिज्म। लेकिन तुम्हारे रहने से मुझे अपने बचपन की वो यादें आ रही हैं, जब मैं पहली बार नेचर को विजिट किया था। तो आई फील दैट थिंग, उसको लेकर के उन्होंने बात किया। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वर्ड्सवर्थ यहाँ पे बात करते हैं। दूसरा चीज है कि जब आप उनकी फर्स्ट पार्ट को लेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने ये बताया है कि 5 साल पहले जब मैं आया था तब नेचर समथिंग डिफरेंट था। लेकिन वो कहते हैं कि 5 years have passed, 5 summers with the length and again I am, मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ और वही जो है मुझे म्यूजिक सुनाई पड़ता है। वह म्यूजिक किसकी है? फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम माउंटेन, रोलिंग डाउन, वह जो है रोल कैसे पानी लुढ़कते हुए आ रहा है। तो ये सब जो पिक्चर है वह एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर है। कि उन्होंने बताया कि कैसे मैं एक डियर के बच्चे की तरह से, या लाइक अ लैम्ब, कैसे आई जस्ट skipped from one place to another, jumped from one place to another and beholded the beauty of nature. These things he shared to all of us. So when you go, तो आपको पूरा पोयम में एक्सटर्नल ब्यूटी, पोयम में इंटरनल ब्यूटी, पोयम में फिलोसफिकल ब्यूटी, these things you find, these things you see, वो सब चीजें आपको नजर आएंगी। उसके बाद एक और पॉइंट है कि जो आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जिसमें उन्होंने डोरोथी वर्ड्सवर्थ को किया, और पास्ट वाला उनका बहुत एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है कि पिछले 5 सालों में जो था वह लाइफ कैसे थी। और अगर इफ आई वाज इन सिटी एरिया, इफ आई वाज एलोन, तो मैं अकेले नहीं था। जो भी समय मैंने नेचर में गुजारा, नेचर हमेशा हमारे साथ रही, नेचर ने हमेशा हमें कंपनी दी है, नेचर ने हमेशा हमें कंपनी दी। सच अ थिंग वी फाइंड। तो यह भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। पोयम से रिलेटेड 2 और पॉइंट आपको नोट करना है कि एक क्रिटिक है हेलेन डर्बीशायर।
इसे मैं इरेज कर दूं? यस सर। जी सर। ओके ओके। सर हेलेन डर्बीशायर का कोटेशन आप लिखा चुके हैं सर। वो जो है उसके लिए था, क्या नाम है, जो द प्रील्यूड को लेकर के था। इनका एक कोटेशन इस पोयम को लेकर के हेलन डर्बीशायर ने कहा है, एक तो मेरे मार्कर में जान ही नहीं है, HEL हेलन डर्बी शायर। हेलन डर्बी शायर ने इस पोयम के बारे में कहा है, और वो क्या कहती हैं, उनका ये कहना है कि दिस इज द फर्स्ट पोयम, दिस इज द फर्स्ट पोयम, दिस इज द फर्स्ट पोयम in which Wordsworth genius find full expression, या तो एक चीज, ये पॉइंट आप देखेंगे, ये उनका कहना है। दूसरा चीज की एक हेलेन डर्बी शायर का यह स्टेटमेंट हो गया, इन दिस पोयम वर्ड्सवर्थ डिपिक्ट्स, बहुत छोटा तो नहीं लिख रहे हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या आवाज किसी को नहीं जा रही है? आ रही है सर। आ रही है तो सर, आ रही है। आई थिंक कि वहां से लेकिन वर्ड्स बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं सर। वर्ड्सवर्थ छोटा दिखाई। In this poem, Wordsworth depicts the different DIFFERENT, the different mood of nature. ये फॉन्ट का साइज सही है? जी सर सही है। सही सर। इस पोयम में, in this poem, Wordsworth depicts the different mood of nature. ऑल ऑफ The different mood of man, sorry, the different mood of man, यहाँ पे the different mood of man, the different mood of man to show his relationship with, मैंने आपको बता कि इन दिस पोयम वर्ड्सवर्थ डिपिक्ट्स द डिफरेंट मूड ऑफ मैन, जो डिफरेंट मूड ऑफ मैन है उसको डिपिक्ट करते हैं, टू शो हिज रिलेशनशिप विद नेचर। ये पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और उनकी जो पोयम है डैफोडिल, यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा, in Daffodil, DAFFODIL, he depicts different mood of different mood of nature. In Daffodil, he depicts different mood of nature. So these things you find. लेट मी नो कि जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं इस समय सभी के पास मेरी किताब है, उनके पास या बगल में? यस सर। नहीं सर, हमारे
जिसके पास नहीं है, जब किताब आएगी तब वो उसको करेगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है जो मैं लाइन को यहाँ मैं लिखूंगा नहीं, वो उसी उस पे है। मैं अगर आपके पास होगा तो आप वहां से देखते रहिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक लाइन को। पेज नंबर 91। ओके। जिसके पास नहीं वो सुनता रहेगा, तब भी वो चीजें उसको समझ में आ जाएंगी। इफ यू गेट आई रिसीव द बुक, आप जो है जब भी होगा। सो आप इसमें देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की प्लीज म्यूट। जो सबसे पहली बात उसमें, प्लीज म्यूट। अभी भी किसी का म्यूट नहीं है। उसमें उन्होंने जो बताया हुआ है, कई पॉइंट को लेकर के बात की है, जिसमें एक उनका स्टैंजा है, 5 years have passed, 5 summers with the length। उन्होंने 5 साल के का ड्यूरेशन जो था, जो 5 साल बाद वो दोबारा रिविजिट करते हैं। कब रिविजिट किए थे? 1798 में उन्होंने रिविजिट किया था। तो जब वो 1798 में रिविजिट करते हैं तो वहां का वो बताते हैं कि 5 साल बीत चुका है, 5 साल जा चुका। जब 5 साल गया तो 5 समर्स भी बीता, साथ ही साथ लॉन्ग 5 विंटर। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने विंटर के आगे लॉन्ग क्यों लगाया? क्योंकि यूरोप में ठंडी लंबी होती है, समर जो है छोटा होता है, तो वो लॉन्ग उन्होंने जो वर्ड यूज किया होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ये लॉन्ग विंटर रहा है। 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear. Again, it refers to a revisit. For the first time, he visited that place in 1793, and second time in 1798 with Dorothy Wordsworth and S.T. Collins. July 15th, अगर आपको याद होगा मैंने लिख पाया था। So he says that I again hear. What I again hear? जो मैंने बताया था कि falling of water, water cataracts, the sweet sound of water that is rolling down from mountain on earth, उसको वो सुनते हैं। तो ये जो है, अगर एक क्वेश्चन आता है कि 5 years क्या इंडिकेट करता है, द मीन्स दिस 5 years indicates for the first time when he visited that place, that was what, that was टिंटन अबे, जब उन्होंने पहली बार उसको विजिट किया था 1793 में, उसको लेकर के। फिर उन्होंने आगे लिखा है, एक और स्टैंजा मैंने अपनी किताब में दिया, लगभग जितने इंपॉर्टेंट है सब आ चुका है। These waters, ये जो वाटर्स है, कौन से वाटर्स? फॉलिंग ऑफ वाटर, फॉलिंग ऑफ वाटर, झरने, जो एक तरह से जो है माउंटेन से जो फॉलिंग ऑफ वाटर हो रहा, उसको उन्होंने, एक नहीं है कई है, बिकॉज ही इज इन द लैप ऑफ नेचर, ही नॉट ओनली बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर बट ही फाइंड द स्वीट साउंड ऑफ फॉलिंग ऑफ वाटर। उन्होंने कहा दीज वाटर्स, ये जो वाटर्स हैं रोलिंग, जो लुढ़क रहे। अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि जब किसी वर्ड में एक्शन नजर आएगा, मूवमेंट नजर आएगा, तब उसको क्या कहा जाता है? वहां पे काइनेटिक इमेज होती है। काइनेटिक, KINETIC। पानी जब लुढ़क रहा है तो वह गतिशील अवस्था में है। तो यहाँ पे जो इमेज आई है, कौन सी इमेज आई है? काइनेटिक इमेज आई हुई है। ये चीज ध्यान में रखना है। उन्होंने कहा दीज वाटर्स, यह जो वाटर्स है, रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन, यह जो है माउंटेन स्प्रिंग से आ रहा है। माउंटेन स्प्रिंग जो कि पानी का सोता है, जहां पर मतलब आप कैसे रहें कि जो झरना है, ये वाटर वहां से लुढ़कते हुए नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब वर्ड्सवर्थ कितना ज्यादा कॉन्शियस है। ही इज ऑब्जर्विंग, he is not only meditating, he casted his eyes hither and thither and observing, catching each and every glimpses of nature, the glimpses which he find in the lap of nature, he catches it and just tells कि वो वहां पे देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? these waters, इस waters को rolling from the mountain springs with a soft inland murmur, और soft, बहुत ही कोमलता के साथ, मधुर ध्वनि के साथ वह लैंड कर रहा है, जमीन पर उतर रहा है। मरमर, MUR, यू नो इट वेरी वेल कि द वर्ड मरमर इट रिफर्स टुवर्ड ऑडिटरी इमेज। नंबर 1, साउंड ओरिएंटेड इमेज। कौन सा इमेज होगा? ऑडिटरी इमेज। नंबर 2, व्हाट डू यू फाइंड? नंबर 2 यू फाइंड ओनोमेटोपी।
फिगर ऑफ स्पीच, जो हम लोग ओनोमेटोपोइया कहते हैं, दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ओनोमेटोपी, हम उसको पाते हैं. सो हियर यू फाइंड व्हाट, हियर यू फाइंड टू थिंग्स. एंड व्हाट आर दीज टू पॉइंट्स? दीज टू पॉइंट्स की जो मर्मरिंग है, वह पार्टिकुलर मर्मरिंग तो एक तो इंडिकेट किस चीज को कर रहा है, आपका ऑडिटरी इमेज. ऑडिटरी इमेज इज रिलेटेड टू ईयर. दूसरा चीज कौन सी चीज का इंडिकेट कर रहा है? फिगर ऑफ स्पीच, ओनोमेटोपी. और जो रोलिंग था उसमें कौन सी इमेज है? काइनेटिक इमेज है. रोलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द माउंटेन स्प्रिंग सॉफ्ट इनलैंड, सॉफ्ट इनलैंड. यू फाइंड दीज थिंग्स. सो आई हैव डन द two stanzas or some lines. Now the third, these beauteous forms, जब वो वहां पे खड़े हैं, प्रकृति के उस पूरा खूबसूरत मंजर को कैप्चर करते हैं, और जो उन्होंने कुटिया बनाई है, उस कुटिया के दरवाजे पर जब वो खड़े हैं तो पूरा ओपन फील्ड हरा भरा नजर आता है. उन्होंने कहा दीज ब्यूटियस फॉर्म, यह जो खूबसूरत फार्म है, फार्म हाउस, जो यह ब्यूटियस फॉर्म्स है, थ्रू अ लॉन्ग अब्सेंस, लंबे समय से अब्सेंस था. लंबे समय से अब्सेंस होने का मतलब क्या है? बहुत लंबे समय तक मैं इस ब्यूटी को देख ही नहीं पाया था. 5 साल तक वो इस चीज यहाँ आए नहीं थे, 5 साल का गैप हो चुका था. जब दोबारा रिविजिट करते हैं तो उनको सारी चीजें याद आने लगती कि कैसे कैसे, व्हाट द टाइम आई पास्ड, वेयर आई हैड गॉन बिफोर 5 years ago. तो उन्होंने कहा कि ये जो ब्यूटियस फॉर्म्स है, ये 5 साल तक तो बिल्कुल अब्सेंस था. हैव नॉट बीन टू मी, और यह जो है मुझे, मतलब हमें इसको देख ही नहीं पाया था. हैव नॉट बीन टू मी, यह मुझे लगता था कि मैं उसको भूल ही गया था. और ऐसे ही भूल गया था एज, जैसा कि इज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आई, जैसा कि किसी अंधे आदमी के सामने ये बताया जाए कि लैंडस्केप ऐसा होता है. लैंडस्केप जो पृथ्वी का उठा हुआ हिस्सा होता है, या जो पर्वत होता है वो इतना ऊंचा होता है, अंधा आदमी क्या कल्पना करेगा. तो उन्होंने कहा कि 5 साल तक ये ब्यूटी आई डिडंट फाइंड, द ब्यूटी व्हिच आई बिहोल्ड इन द लैप ऑफ नेचर टुडे. बिफोर 5 years ago I visited this place, I had seen these beauties, these beauteous form with my open eye. लेकिन 5 साल तक यह मेरी निगाहों से बिल्कुल चला गया था, मुझे कोई चीज याद ही नहीं आ रही थी. और ऐसे ही था मेरे लिए जैसे कि जिसे किसी ब्लाइंड आदमी के सामने लैंडस्केप की इमेज को रखा जाए. तो आप समझ सकते हैं अंधा आदमी क्या, किसी चीज का क्या तस्वुर करेगी. जब उसको कोई वो देखा ही नहीं तो उसकी इमेज कहां से बनेगी. हमें कोई चीज तभी समझ में आती है जब उसकी एक इमेज हमारी आंखों में बनती है, तभी हम समझते हैं कि हम आप इसकी बात कर रहे हैं, एक सिग्नल मिलता है. फिर करें कि द साउंडिंग कैटरैक्ट्स, जो साउंडिंग, साउंड आवाज, कैटरैक्ट वाटरफॉल, जो वाटरफॉल है उसका जो आवाज है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा जो है, you can just see auditory image. The sounding cataracts haunted me like a passion. मुझे एक चीज हमेशा याद आती थी, जो झरने का पानी जो कल कल करके गिर रहा, यह ध्वनि मुझे हमेशा याद आती थी. वह मुझे हांट करता था. हांट का मतलब कि कोई पास्ट की चीजें लगातार आपका पीछा कर रही हैं, आपको याद कर रही हैं, या आपको बार बार आपको परेशान कर रही हैं. दैट इज हांटेड. हांटेड मी, कैसे हांट करती थी? सिमली लाइक अ पैशन, एक उत्तेजना के साथ. लाइक अ पैशन, कुछ वर्ड आगे रहा होगा लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट ही लिया होगा, या मुझे वैसे ही याद आ रही थी. हांटेड मी लाइक अ पैशन. So you can just see Wordsworth क्या पाते हैं. Wordsworth finds music in the lap of nature, in the world of nature. Wordsworth feels comfort, joy, pleasure in the lap of nature. For Wordsworth, nature is guide, guardian, caretaker, nurse. Wordsworth feels what? कि nature is the absolute power of peace, calm, bond, tranquility and joy. These things you find. आगे वो कहते हैं, अपनी सिस्टर को एड्रेस करते हैं. मैंने बताया कि मैंने इंपॉर्टेंट लाइन ही लिया हुआ है. आगे वो कहते हैं कि मे आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वाज वंस, माय डियर डियर सिस्टर. ये जो डियर डियर सिस्टर, ये भी पूछा जा चुका, किसके लिए? डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए. उन्होंने कहा मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी आंखों में जो चमक है, क्या मैं इसको कुछ देर तक निहार सकता हूं? My dear sister. It shows how much he was passionate. It shows how much he had love for his sister. तो उसको एड्रेस करते हैं कि my dear sister, my sweet sister. It shows regards. It also shows affection. It also shows respect between his sister. और वो खुद उसको क्या रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं. तो ये कहते हैं कि may I behold in thee, may I just
just behold the beauty which I see, which I find in your eye. May I behold in the what I was once, मैं क्या था, what I was, past की बात, मैं क्या था, मतलब जो तुम आज जहां पे खड़ी हो एक समय मैं वहां पे था। तो मैं अपने बचपन को याद कर सकता हूं, तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में जो चमक है तो उसको मैं देखना चाहता हूं। फिर उन्होंने कहा द मेमोरी बी एज अ ड्वेलिंग प्लेस, द मेमोरी, जो मेरी मेमोरी है या जो तुम्हारी मेमोरी है यह एक ड्वेलिंग प्लेस है, यहाँ सारी चीजें बसती हैं, इंसानों की बस्ती नहीं, लेकिन इंसानों की जो भी यादें हैं या जो भी चीजें हैं वह हमारी मेमोरीज में बसती हैं, उसको रिकॉल करने की जरूरत है। तो जो पास्ट है, जो मेरा बचपना है, वो मैं भूला नहीं, आई नीड टू रिकॉल इट, आई नीड टू रिकॉल इट, मुझे उसको केवल रिकॉल करने की जरूरत है। फिर करें कि फॉर ऑल स्वीट साउंड्स एंड द हार्मनीज, जितनी भी मधुर आवाज सुनाई पड़े, जहां पे भी साउंड आएगा वी नो इट वेरी वेल कि यह क्या है, ऑडिटरी इमेज। और मैंने बताया था कि उन्होंने नेचर के केवल खूबसूरत लम्हों का जिक्र किया, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लिया है। उन्होंने नहीं कहा कि नेचर में स्टॉर्म आता है, नेचर में फ्लड आता है, नेचर में अर्थक्वेक आता है, नो, स्वीट, टेंडर, सॉफ्ट, जॉयफुल, आप कह सकते हैं जिनरस, काइंड हार्टेड, पिटी, मर्सी का जो एस्पेक्ट होता है, दीज थिंग्स वी फाइंड व्हिच विलियम वर्ड्सवर्थ टॉक। सो ही सेज फॉर ऑल स्वीट्स, जितनी भी साउंड्स है, एंड द हार्मोनीज, और जो भी सुखद वातावरण या आवाजें हैं वो सब मैं लेना चाहता हूँ। इफ सॉलिट्यूड, चाहे मैं अकेले में, सॉलिट्यूड मैंने अकेला, आर फियर, या मैं डरता था, आर पेन, अथवा मैं कष्ट में था, आर ग्रीफ, या मैं ग्रीफ में था, ग्रीफ पेन का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म, चाहे जिस भी कंडीशन में था, मुझे बहुत कष्ट था, मुझे दर्द था, या मैं अकेले था, कभी मैंने अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया। नेचर की जो स्वीट साउंड है, जो फॉलिंग ऑफ द माउंटेन, जो फॉलिंग ऑफ द वाटरफॉल है, ये सब चीजें मुझे स्वीट साउंड के रूप में हमेशा याद आती रही। ऐसा लगता था मुझे एक सुखद म्यूजिक का एहसास होता रहा है। तो कहते हैं कि नेचर कभी किसी को धोखा नहीं देती अगर कोई आदमी अपने आप को प्रकृति में जमा कर देता है। और जो भी समय आपने नेचर में गुजारा है, जो भी टाइम आपने नेचर में व्यतीत किया है, उसका बदला आपको हमेशा ताज जिंदगी मिलता रहेगा। कह रहे शुड बी दाई पोर्शन, आज यह तुम्हारा हिस्सा बन रहा है, जो कल मैंने जिया था, जो कल मैंने महसूस किया था, आज यह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। विद व्हाट हीलिंग थॉट्स ऑफ टेंडर, और ऐसा लगता है कि जैसे नेचर जो है हमारे घावों को भर देता है, और कैसे टेंडर जो है कोमल खुशियों से। जॉय तो अपने में एक ऑलरेडी बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन अगर उसमें टेंडर जॉय, जिसका मतलब खुशियां भी जो है वो बहुत मासूम खुशियां नेचर लेकर के आती है, उससे हमें भर देता है। विल्ट दाउ रिमेंबर, तुम इसको जो है याद करो, इसको आज जो भी तुम प्राप्त कर रही हो, ये समझो कि आने वाले समय में तुम इसको याद करोगी, जैसे मैं अपने बचपने को याद कर रहा हूँ। यू विल ऑल्सो रिमेंबर दीज थिंग्स, ही सेज दैट टाइम इज पास्ट, वह समय निकल चुका है, एंड ऑल इट्स एक्टिंग जॉयज आर नाउ नो मोर, और जितने भी उसके जो एक्टिंग जॉयज हैं, मतलब एक्टिंग जॉयज क्यों है, चूंकि वह समय जा चुका है, खुशियां तो हैं, लेकिन उन खुशियों को मैं केवल महसूस अब कर सकता हूँ, उसको डायरेक्ट मैं फील नहीं कर सकता कि मैं उसका हिस्सा नहीं, चूंकि वो पास्ट का हिस्सा बन, इसलिए मुझे कुछ एक्टिंग जॉयज है, एक दर्द का एहसास हो रहा है कि वो मुझसे अलग हो चुकी है। फिर करें एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, और हमारी जीवन में एक तरह से जो भी रोशनी करने वाली ऐसी खुशियां जो हमारी जीवन को रोशन करने वाली थी, चकाचौंध करने वाली थी, उन डिजी रैप्चर्स को मैं अपनी जिंदगी में ले लेना चाहता हूं। और तुम इसको फील करो, आने वाले समय में तुम भी जब मेरी उम्र में पहुंचोगी तो इसको याद करोगी। इसलिए जरूरी है हर लम्हा, हर पल विच यू पास in the lap of nature, just behold it, just try to catch it, try to grasp it in the कंक्लूडिंग स्टैंजा, मतलब जो मैंने इंपॉर्टेंट लिया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वी स्टूड टुगेदर, वी का मतलब दोनों की बात कर रहे हैं, डोरोथी वर्ड्सवर्थ एंड वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं आज हम दोनों यहाँ साथ साथ खड़े हैं। दैट आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर, मैं तो बहुत लंबे समय से नेचर का वर्शिपर हूँ, क्योंकि अभी वर्ड्सवर्थ की बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ छोटी है, उन्होंने कहा मैं तो बहुत लंबे समय से वर्ड्सवर्थ उसका प्रकृति का उपासक हूँ। हाइदर केम अनवेरिड इन दैट सर्विस, और नेचर जो है क्या करती है, अपनी सेवा देती है बगैर थके हुए।
नेचर हमेशा अपनी सर्विस देती है। मैं जब भी नेचर की लाइफ में आया हूँ, नेचर की दुनिया में, कभी मैं थका नहीं, नेवर, अनवियरिड, बगैर थके हुए। सो इन दिस वे you find ki I have explained most of the importance, like I have explained. Again, I would like to say, if you get time, you have to go with these poems. आपको पढ़ना चाहिए खुद अपनी शौक के लिए, अपनी चीजों को लर्न करने के लिए। Nothing else. We will meet in the evening. Evening में हम जो है, जो इस बैच में नहीं कवर किए हैं वो मैं इवनिंग में कवर करूंगा। Ode on the Intimations of Immortality को, कुछ और पोएम्स को, उसका वीडियो आपको शेयर किया जाएगा। वर्ड्सवर्थ दोनों जगह चल रहा है, इससे थोड़ा सा कोर्स भी मैं जल्दी कर पा रहा हूँ, और दोनों चीजें आपको कोलैबोरेटिव में आपको करना, वहां से वीडियो यहाँ का वहां का, इन दिस वे यू कैन डू। ओके, एक्सक्यूज मी सर। जी सर मतलब इवनिंग में क्लास चलता है, मतलब मॉर्निंग के बच्चे नहीं रहते हैं? नहीं, ना तो मॉर्निंग वाली इवनिंग में, ना इवनिंग वाले मॉर्निंग में। सर कल सोनेट के बारे में आपने शायद पढ़ाया होगा, मेरे यूट्यूब पे आया, तो उस पे पिक्चर क्लियर नहीं दिख रहा था, तो वही शाम का रहा होगा, इवनिंग का रहा होगा। वो इवनिंग बैच का था, लेकिन जो है दूसरे मतलब यूजीसी नेट की क्लास थी उसमें, मतलब वो, हाँ मतलब अच्छा जी, वो लेकिन वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, उसे नोट